थैंक यू सो मच। मॉर्निंग, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, है ना। सो इससे हम एक और चीज सीखते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वेन एवर यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द टाइमिंग और हाउ टू विश समवन, देन यू से ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो कभी कभी क्या होता है, यू ड्रॉप अ मैसेज इन द मॉर्निंग but the person reads it in the afternoon. So he reads good morning at 12. So it's better that the person reads greetings of the day. So whatever time you are reading the message, understand that I am greeting you right now. ठीक है, एक चीज सीखी हमने, ठीक है। While interacting only, I want to convey few things to you. Fine. Personality development क्या होता है, किसको पता है? Find me as personality coach Manisha. ठीक है, and I have academy, Pleasant Personality Academy. All right, I do the career guidance also, and I give personal sessions to the students who are in 12th standard how to ace the interviews. But I also felt that 10th class is the crucial year जहां पर पहला major decision of your life आप लेना शुरू करते हो, है ना। आप चूज करते हो which stream you are going to choose. Am I right? मतलब कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस आती है कि क्या सब्जेक्ट मुझे पसंद है, क्या चीजें मुझे पसंद है ना। अवेयरनेस आती है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं ये शायद नहीं कर सकता हूं। सो दिस इज द राइट एज जहां पर आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर के भी अवेयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड मी अगेन एज पर्सनालिटी कोच मनीषा। मनीषा कोई है इस क्लास में? ठीक है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इजी ना टू रिमेंबर। निशा है, ठीक है। तो अब याद रखना, मनीषा और निशा दोनों नहीं है, तो मैम का नाम इज मनीषा। ठीक है, शिखा, गो दैट्स यू माइट वुड लाइक टू फॉलो फॉर बेटर एंड मोर टिप्स। ओके, बिकॉज अभी तो कनेक्ट बना नहीं है हमारा, बन जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आई एम हियर फॉर 15 minutes ओनली, so make best use of it. So I am giving opportunity to class 10th first. I have this mic also. On the mic you raise your hand, I'll give you the mic, you ask question. You ask question. आपको क्या लगता है, मुझसे क्या जवाब चाहिए आपको, and I'll be very happy to give you answer, क्योंकि आप एक बच्चा सवाल करेगा, you can ask on behalf of your class. आपकी एज के बच्चों के क्वेश्चंस क्या हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेके, आइडेंटिटी को लेके, चॉइस ऑफ करियर को लेके, पढ़ाई को लेके, कंसंट्रेशन को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, पब्लिक स्पीकिंग को लेके, इट्स वास्ट एरिया. So I want to answer the questions you have in your mind. Okay, raise your hands. Who want to ask question? Nahi? Okay, so here you can ask, you want to ask? Think of the question, no worries, think of the question. Here is a lesson for everyone. और तब तक आप लोग सोचो क्वेश्चन भी। बेटा, this is the opportunity missed by you. These are the opportunities that you miss. So it's a message and a lesson for students of class 10. Please eye contact रखो, eye contact रखो, ठीक है? It is very important. जब भी आपके साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है पब्लिक में, the person is one. उसकी कितनी आंखें हैं? लेकिन आप सब चाहते ना कि मेरे को देखे, आप सबके पास तो दो दो आंखें हैं, खड़ा तो सामने एक है. You can keep your two eyes on one person, right? It's tough for the person who is speaking to look at everyone, but I am trying that. So this is a lesson and learning for you. जब भी आप यहाँ पे कभी भी कहीं भी स्टेज पे या फ्रंट में आते हो, so it's your duty कि जितने क्लास में बच्चे हैं या ऑडियंस में बच्चे हैं, you connect with them. How do you connect? Eye contact. अब बहुत देर तक तो एक बच्चे को अगर देखोगे तो वो भी डर जाएगा, बाकी लोग सोचेंगे हम मैटर ही नहीं कर रहे, right? So when you come here, it's your duty to connect. How do you do that? But how? I'm looking at you. Are you scared when I'm looking at you? Are you scared? You must be, because I'm looking directly into your eyes. है ना, आपने आंखें झुका ली. So it's an art.
Eye contact is an art. You don't look directly into the eyes of the person. You look at this area. It's a T. T, right? Forehead and nose, lips, chin. It's a T, right? So you don't have to look into eyes. Eyes तो इसमें है ही नहीं T में. But we call it eye contact. You can focus अपने comfort के हिसाब से और सामने वाले के comfort के हिसाब से. It's always better to look at the bindi area. ठीक है? Else chin or nose. So that's what eye contact is, not looking into the eyes. ठीक है? एक तो अपने को ये समझ आया. So if I'm looking like this, always remember anti-clockwise, clockwise you have to look. ठीक है? Another thing, missed opportunity क्यों बोली मैंने? It was an opportunity आपके लिए to ask a question. Question तो silly भी हो सकता है ना? तो डरना क्यों? लाइफ में मौके जो है ना बेटा चूज करने के, हाईलाइट होने के, अलग से शाइन करने के, वो बहुत लिमिटेड आते हैं, है ना? वो ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा और उसके बाद वो चले जाते हैं, है ना? गुड, आई लाइक दैट. चलो थोड़ा मोटिवेट हुए बच्चे, बट दैट्स ट्रू. सो नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर यू गेट एनी. ओके, आस्क द क्वेश्चन. Ma'am, how to make a perfect sorry. अरे यार. No worries. How to make a perfect personality to contact with other people who you don't know. Strangers, है ना? ठीक है. Thank you. Claps for him first. Sit down, sit down. I'll answer. So सबसे पहले तो I'll answer something different. जब भी आप क्वेश्चन पूछो नेक्स्ट टाइम, कोई भी पूछे, रिहर्स करो. एक बार ब्रेन में वो क्वेश्चन रिहर्स करो, ठीक है? एंड देन स्पीक. तो कभी हम फंबल नहीं करेंगे. और एक बार दो बार गलती करके तो हम इंप्रूव होते हैं. सो इट्स फाइन. आई अप्रिशिएट कि आपने एटलीस्ट स्टेप लिया. सो नेवर हेजिटेट इन डूइंग मिस्टेक्स. बट मिस्टेक से हमें सीखना भी है ना कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, हाउ आई कैन इम्प्रूव. सो हाउ कैन यू इम्प्रूव? बाय rehearsing once in your brain and then speaking. Okay, now coming to your question, how to develop a personality जो strangers के साथ में भी confidently बात करते हैं, वो कैसे होती है? ठीक है. So start doing two things from now. One, start noticing good things in other people. Genuinely good things. खराब तो हमें, कमियां हमें बहुत जल्दी दिख जाती है ना. Change your mindset to noticing positive things, good things in a person. Notice करना है सबसे पहला काम. Second, then tell that person, I noticed this good thing in you. I really appreciate or I admire. कोई stranger भी ना आपको कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि how dare you give me compliment. बोलेगा? नहीं ना? I'm smiling. Won't you smile back? You can't tell me why are you smiling all the time. Will you tell me don't smile? No. Finally, you'll have to reciprocate it with a smile. And it's your choice. You don't want to reciprocate, but at least you'll not tell me not to do that. So good things are always appreciated. Notice good thing and then appreciate. Now you'll think कि strangers को कैसे हम notice करें, appreciate करें. It's a long process. Strangers कहाँ मिलते हैं? क्लास में स्ट्रेंजर्स मिलते हैं? हाँ, दूसरे सेक्शन में. दे आर स्ट्रेंजर्स, येट स्ट्रेंजर्स. आप लोग तो स्ट्रेंजर्स इज समवन जो आपसे फर्स्ट टाइम मिले, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं. फर्स्ट टाइम देख रहे हो, घबरा सकते हो, पता नहीं, डाउट होता है ये कौन है. वो स्ट्रेंजर होता है. जो रोज दिख रहे हैं वो स्ट्रेंजर्स थोड़ी ना. दे आर फैमिलियर पीपल, दे आर फैमिलियर्स. ठीक है? बट चलो ठीक है, दूसरे क्लास के बोले तब तो बहुत दूर है ही नहीं. दूसरे क्लास के बच्चों को तो आप नोटिस कर ही सकते हो. इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, सी फर्स्ट गुड थिंग्स, अप्रिशिएट, बट ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक. ठीक है? अब जिसको आपको टारगेट करना है कि नहीं मुझे इसको अप्रिशिएट करना है, उसको पहले मत करो. यू माइट डू फंबल. जैसे आपकी फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस है तो वहां तो आप फंबल नहीं करना चाहोगे ना. सो व्हाट यू डू, यू प्रैक्टिस एट होम. घर पे मम्मी पापा को बिठा लो,
उनके सामने बोलना शुरू करो, सिस्टर्स को मतलब फ्रेंड सिस्टर कजिन्स को बिठाओ, उनके सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो, वहां मिस्टेक करो। जब फाइनल परफॉर्मेंस है वहां पर मिस्टेक नहीं होगी या चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू टॉक टू समवन जिसकी बात करने की हिम्मत नहीं आ रही है, तो पहले ट्राई विद अननोन स्ट्रेंजर्स। सब्जी की दुकान पे दोबारा मिलने भी नहीं वाले, सही बात है ना, वहां पे ट्राई करो, वहां पे अप्रिशिएट करो। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी बाय फर्स्ट। साइकिल पंचर वाले भैया को कॉम्प्लीमेंट कर दो। साइकिल है ना सबके पास ज्यादातर, हाँ नहीं है? अगर है तो यू कैन से, इतनी धूप में आप यहाँ बैठ के हमेशा अवेलेबल होते हो, आई रियली अप्रिशिएट, आई एडमायर आपका हार्ड वर्क। देखो रिएक्शन कैसा आता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि उसको किसी ने कभी कॉम्प्लीमेंट किया नहीं होगा ना, बट यू आर डूइंग इट, सो ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट ऑलवेज विद दैट। एंड देन इफ यू हैव अदर इंटेंशन, लाइक मुझे किसी से पढ़ाई में हेल्प लेनी है या मुझे कुछ सीखना है, सो ऑलवेज कन्वे योर इंटेंशन ऑल्सो, द पर्सन विल बी मोर रेसिप्रोकेटिव। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फाइड विद द आंसर? पक्का? कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैक्टिस करना है। द पीपल हु यू थिंक वोंट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग बैड, हु विल ओनली से थैंक्स और ओनली स्माइल, उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करना है। बस कंडक्टर, ट्रेन में जा रहे हो, को पैसेंजर, वार्ड बॉय, कहाँ जहां मतलब जहां जहां लोग मिलते हैं, स्टार्ट नोटिसिंग गुड एंड कोशिश करने की मुझे बोलना ही है, इट्स माई टारगेट कि मुझे इसको कुछ तो बोलना है। ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। फॉर मी यू ऑल आर स्ट्रेंजर्स, I can still appreciate people. Who wants to hear the compliment? Raise your hand. You want to? ठीक है. So of course you are going to get the compliment of being the first volunteer of the class, being so confident and being so courageous to stand and speak. So it's a big compliment for you, right? Big round of applause again. Two applause. Right? Who else wants the compliment from me? Raise your hand and then tell me how it feels. Tell jaldi. You want compliment? No, you don't want compliment? Okay. So I noticed that in a class, generally it's considered, in our country at least, the first benchers, if it is not a rotational, the first benchers are considered to be more interested in studies. Is that so? No, not so. Whatever. But for me, the compliment is it takes a lot of courage to sit in the front bench. So I appreciate that. Becoming extrovert is an good thing or bad thing? Okay, are you an extrovert or introvert? I'm not extrovert but introvert. Okay, extrovert होता क्या है? हाँ, जो बहुत फ्रेंडली होता है, जिसको सोचना नहीं पड़ता मुझे किससे बात करनी है, तो उसको कोई हेजिटेशन नहीं होता। इंट्रोवर्ट, और वो इंजॉय करता है कंपनी ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट होता है वो अकेले में रहना पसंद करता है, या उसको कभी बात करने बोलो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। तो आपने पूछा कि इंट्रोवर्ट होना अच्छा, सॉरी एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है या नहीं? सब अच्छा है, जैसे आप हो उसका बेस्ट वर्जन होना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, या कभी कभी वो आपके फेवर में वर्क नहीं करता। तो एम्बिवर्ट इज अ वर्ड। जो बहुत इंट्रोवर्ट है उनको कोशिश करनी चाहिए टू ओपन अप, टू प्रैक्टिस, गेन कॉन्फिडेंस इन पब्लिक सेटिंग, सो दे बिकम एम्बिवर्ट। मतलब जहां जरूरत है वहां बोलेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां कम बोलेंगे। एक्सट्रोवर्ट शुड होल्ड देमसेल्व्स, इतना भी नहीं बोलना है, इतना भी नहीं फ्रेंडली होना है। सो दे ऑल्सो हैव टू बैलेंस एंड कम अप टू बीइंग एम्बिवर्ट। बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट बैड. Many of the scientists have been introvert because they never liked partying, socializing. They were focused in one thing and they were happy with their own company. So being introvert is being happy with your own company. But आपके मन में शांति नहीं है, आप चाहते हो बात करना और हो नहीं पा रही है, so it's unhealthy. Then it's not helping you. Then you have to work on your personality to become better version of you. वो कैसे होगा?
प्रैक्टिस से होगा। साइकिलिंग सबको आती है, बचपन में की है, पैदा होते ही साइकिल चलानी आती थी? कभी सोचा था कि साइकिल कैसे चलाएंगे? सोचा था क्या? क्योंकि ऐसा लगता था सब चला रहे हैं, हम भी चला सकते हैं। तो यही सोचो, सब बोल रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं, सब बात कर रहे हैं, आपस में हम भी कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कुछ लोग होते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे बात करते हो, पर कभी कभी आप मतलब बिना देखे उनको निकल गए, है ना, उसके बाद वो आपसे नाराज़ होता है, आप समझा रहे हो कि ऐसा नहीं है वगैरह, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, फिर ताने वगैरह मारते रहते, गलत होते, तो क्या मतलब? सो गुड, थैंक यू। ये बंद है मुझे लग रहा है माइक। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। इफ यू आर क्लियर इन योर हेड, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। यू आर नॉट एट द एज कि आप पे किसी की जिम्मेदारी है, किसी के इमोशंस का बोझ और किसी के इमोशंस का लोड लेके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके ऊपर 10th क्लास में सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी है, अपने पेरेंट्स के सपनों की जिम्मेदारी है,